हेलो बच्चों बच्चों आज मैं आपके साथ कुछ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और कुछ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा और साथ में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी डिस्कस करूंगा एंड व्हाट इज द पावर विड्रॉन फ्रॉम ए सेल दैट विल बी डिस्कस। देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था कि व्हाट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स और this is a suppose this is a combination of 5 resistors and when it is a balanced Wheatstone bridge, suppose this is another resistor, this is of 10 ohm, this is of 20 ohm, this is of 20 ohm, this is of 10 ohm, this is of 30 ohm, and here we are having a supply. So this combination of these resistors and this cell is called Wheatstone bridge. Or what happens when the product of their opposite resistances are equal, in that case it will be a balanced Wheatstone bridge. Or when it is a balanced Wheatstone bridge, in that case we have to calculate the effective resistance. Suppose here we have to calculate the effective resistance between A and B. If we have to calculate the effective resistance A and B, as it is a balanced Wheatstone bridge, how it is balanced? Because here 10 into 20 is equal to 20 into 10. That implies that no current will flow in this 30 ohm resistance. Means when no current will flow in this 30 ohm resistance, it means that there is no role of this resistor in this circuit, and that implies that these two resistors are in series. Here these two resistors are in series and their combination is in parallel. Means they are in series. 10 plus 20, this becomes 30 ohm. 10 plus 20, this becomes 30 ohm, and here effective resistance 30 or 30 ohm क्या है? They are connected in parallel. In this way effective resistance becomes 15 ohm. So in this way, when it is clear that it is a balanced Wheatstone bridge, if we have to calculate the effective resistance, then it is very simple to calculate it. Clear? और देखिए आपके पास जब कभी भी बच्चों देखिए जब कभी भी आपको 5 रजिस्टर दिखाई दे जाएं तो आप उसको कोशिश करो कि देखो कि कहीं पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रही, और व्हीटस्टोन ब्रिज बन रही है फिर चेक करिए इज इट ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाती है देन इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। क्लियर? नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and B. Between A and B, this is of 10 ohm, this is also of 10 ohm, this is also 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. अब देखिए यहां पे भी क्या है, 5 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब हमारे पास हमें एकदम इमीडिएटली आइडिया जाना चाहिए, इमीडिएटली देखना चाहिए कहीं पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। यस, इट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। और फिर चेक कर लीजिए कि इज इट ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए जब कभी भी 5 रेजिस्टर्स हैं, सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इट मींस दैट अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो डेफिनेटली दैट विल बी ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? नाउ अब अगर मैं सपोज कर लीजिए बी पोर्शन को, दिस इज जस्ट लाइक ए इंडिया गेट, if I open this India gate, B will come here, A will come here, this portion will come here and this resistor will come here. So this point A comes here, this B point comes here. Now अब देखिए आपके पास ये बीच वाला सर्किट खत्म हो गया। ऐसा करने से सर्किट के ऊपर, सर्किट की नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Now it is a Wheatstone bridge and all are having equal resistance. It is a balanced Wheatstone bridge. When in case of there is a balanced Wheatstone bridge or having equal resistance, the effective resistance is also equal to the either of them. अब वो कैसे? देखिए इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये 10 और 10 क्या होंगे? सीरीज में होंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम
ये 10 और 10 क्या होंगे, सीरीज में होंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम। 20 और 20 आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 10 ओम विल बी इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर? सो इन दिस वे कि जब भी आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाती है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी हो, इट इज वेरी सिंपल। और देखिए आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ट्रायंगल ही दी हुई है, ट्रायंगल की ईच रेजिस्टेंस, ट्रायंगल के तीनों साइडों के आपके पास रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 ओम दी हुई है, और आपके पास यहां पे भी क्या है, बीच में भी इसके क्या है, आपके पास 3 रेजिस्टर्स और लगे हुए हैं ऐसे, these are the 3 रेजिस्टर्स। हर की रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, ईच रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है दैट इज ऑफ 10 ओम है। दिस इज आल्सो 10 ओम, दिस इज आल्सो 10 ओम, दिस इज आल्सो 10 ओम। क्लियर? तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? तो अब देखिए कि ये आपके पास नो डाउट इट इज 6 रजिस्टर, बट हम देखेंगे कि ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और है भी क्या, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस पोर्शन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 10 ओम होगी, और ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5 ओम इसकी क्या आ जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर? और देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बहुत अच्छी इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम आती हैं। जस्ट देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास ये डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, दिस इज 1 रजिस्टर, दिस इज अनदर रजिस्टर, यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, सबकी रेजिस्टेंस सेम है, दैट इज ऑफ 10 ओम है। यहां पे एक आपके पास और 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इधर भी आपके पास क्या है, 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पे आपके पास एक 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो आपने अब इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट बिटवीन दिस ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब देखिए अगर आप ये देखो यहां पे ये दिस, अगर इन सभी पॉइंट्स को इकट्ठा कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाती है, बैलेंस व्हीटस्टोन बन जाती है। यहां पे जो जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सब की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम सबकी रेजिस्टर है। क्लियर? ये आपके पास क्या बन गई, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गई। एज इट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, 10 ओम होगी। अब ये 10 इस 10 के साथ क्या है, पैरेलल में लगी हुई है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5 ओम विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। क्लियर? तो इन दिस वे कि आपके पास कहीं पे भी क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिलती है, तो आपके पास उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इट इज वेरी सिंपल, जो आपके पास जो बैलेंस वाला रजिस्टर है, जो बीच वाला रजिस्टर है, उसको आप इग्नोर करके चलिए, दोनों ऊपर वाले रजिस्टर्स को क्या ले लीजिए, सीरीज में है, नीचे दोनों वाले रजिस्टर सीरीज में हैं, उनका कॉम्बिनेशन आपस में क्या बन जाता है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आपके पास एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस व्हीटस्टोन ब्रिज की आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज की आपने क्या कैलकुलेट करनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कहां पे, बिटवीन ए एंड बी। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है, दिस इज ऑफ 2R, दिस इज ऑफ R, दिस इज ऑफ 2R एंड दिस इज ऑफ R। अब आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट इट इज नॉट ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन बैलेंस नहीं है। कैसे पता चला बैलेंस नहीं है, R into R is not equal to 2R into 2R है, तो दिस इज एन unbalanced Wheatstone bridge. Now, how we will calculate the effective resistance of this unbalanced Wheatstone bridge? अब देखिए सारे मेथड्स हमारे पास किर्चॉफ्स लॉ से भी कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा,
सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी अगर हम इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो वेरी डिफिकल्ट। क्यों? यहाँ पे करंट आएगा, करंट आने से हमें पता नहीं चलेगा कि ये करंट कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। वैसे देखने से भी हमें नहीं पता चल रहे कि कौन से यहाँ पे सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो इस तरह से जब आपके पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो, यह कहीं पे भी आपके पास ऐसा सर्किट है जिसमें कहीं ट्रायंगल बनी हो, तो आप क्या करिए, वहां पे जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को आप खत्म करने की कोशिश करिए। और वो ट्रायंगल कैसे खत्म होगी उसके ऊपर आप स्टार डेल्टा मेथड अप्लाई करके उस ट्रायंगल को आप खत्म कर सकते हो। और स्टार ट्रायंगल को खत्म करने के बाद क्या है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस वेरी इजिली। व्हाट इज दिस स्टार डेल्टा मेथड? कि आपके पास सपोज कर लो कहीं पे ऐसा ये डेल्टा बना हुआ है, दिस इज ए डेल्टा, ये आपके पास एक डेल्टा है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, इट्स रेजिस्टेंस इज R2, इट्स रेजिस्टेंस इज R3, ये आपके पास एक डेल्टा बना हुआ है। हम इस डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस डेल्टा कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस स्टार, ये आपके पास ऐसे स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। जब इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ये जो आपके पास नए रेजिस्टर्स बनेंगे इनकी नई वैल्यू होगी। सपोज इसकी वैल्यू क्या है, R1 प्राइम है, इसकी वैल्यू जो है R2 प्राइम है, इसकी वैल्यू क्या है, R3 प्राइम है। क्लियर? यहां पे जो R1 प्राइम की वैल्यू होगी, R1 प्राइम, दिस विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। और यहां पे जो R2 प्राइम की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। R3 प्राइम की जो वैल्यू होगी R3 प्राइम दैट विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R2। These are the values of R1 प्राइम, R2 प्राइम एंड R3 प्राइम। है क्या कि आपके पास जहां R1 प्राइम लिखा है उसके साथ में जो दो कंजक्टिव रेजिस्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सिमिलरली R2 प्राइम एंड R3 प्राइम। जब कभी भी कहीं पे भी आपको डेल्टा दिखाई देता है तो आप उस डेल्टा को इस स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए, और जब आप उस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस बड़े इजिली आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास यही अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि ना तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन से इजीली हो रही है, ना ही आपके पास ये किर्चॉफ्स लॉ से आपके पास इजीली हो रही है, ना ही आपको पता चल रहा कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे एक जो डेल्टा है ए बी सी, इस डेल्टा को हम पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इन दिस वे इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस स्टार। ये आपके पास ए बी सी जो आपके पास डेल्टा है, आपके पास ये स्टार में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास ये तीन नए रजिस्टर बन गए 1 2 एंड 3। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टार डेल्टा मेथड, इस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स R/2। क्लियर? इस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी R/4। सिमिलरली इस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट कम्स R/2। क्लियर? अब आपके पास ये जो है, जो आपके पास डेल्टा था, ये डेल्टा खत्म हो गया। इस डेल्टा को हमें
किस में कन्वर्ट कर लिया, दिस डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू ए स्टार। अब आपके पास इफेक्टिव सर्किट ये बन गया। और इसकी अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे, नाउ इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इट। देखिए बड़े क्लियरली पता चल रहा है, ये R/4 और ये 2R आपस में क्या है, सीरीज में है। तो ये जो सीरीज में है तो इनकी जो आपके पास रेजिस्टेंस बन जाएगी दैट बिकम्स 9/4R बन जाएगी। इट बिकम्स 9/4R। अब ये दोनों भी क्या हैं, आपस में क्या हैं, सीरीज में हैं। इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी क्या बन जाएगी, 3R/2 बन जाएगी। ये कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, पैरेलल में है। इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 2/3 प्लस 4/9, 9 will be the LCM, 6 plus 4, this becomes 10/9। तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी इस कॉम्बिनेशन की, दैट बिकम्स 9R/10 बन जाएगी। और ये 9R/10 R/2 के साथ क्या है, सीरीज में है। तो R/2 के साथ जब सीरीज में आ जाएगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 14R/10 बन जाएगा। और आपके पास दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 7/5R इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो इन दिस वे अगर आपके पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में आप क्या करिए, उसमें दो डेल्टा है, दो डेल्टा में से एक किसी भी एक डेल्टा को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। इमीडिएटली आपके पास पता चल जाएगा कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन से रजिस्टर पैरेलल में है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, तो जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि उसमें भी हम कैसे स्टार डेल्टा मेथड यूज करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें आपके पास क्या है कि देयर आर 2 डेल्टास, हमारे पास 2 डेल्टास होंगे। 2 डेल्टास को आपको स्टार्स में कन्वर्ट करना होगा जिससे आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दिस इज द सर्किट, जिस सर्किट में आपने क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालनी है। और यहाँ पे सभी जितने भी रेजिस्टर हैं सबकी रेजिस्टेंस क्या है, आपके पास इक्वल है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज द सर्किट। अब अगर आप इस सर्किट में देखेंगे तो इट्स नॉट ए सिंपल कि आपके पास इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। एक तो वे इसका सिमेट्रिकल मेथड से है, इसको इस पॉइंट को उठाकर ऊपर ले जाइए, वहां से इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड वे क्या है, आपके पास ये 2 डेल्टा बन गए, एक ये डेल्टा बन गया, एक ये डेल्टा बन गया। इन डेल्टास को आप स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। स्टार में जब इन डेल्टास को कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास ये नए रजिस्टर आ जाएंगे। एक ये नया रजिस्टर आ जाएगा, एक ये नया रजिस्टर आ जाएगा, एक ये नया रजिस्टर आ गया, एक आपके पास ये एक नया रजिस्टर आ गया, और एक ये नया रजिस्टर आ गया। इन सभी की वैल्यूज क्या होगी, दिस इज R/3, इसकी वैल्यू भी क्या होगी R/3, इसकी भी वैल्यू क्या होगी R/3, दिस इज आल्सो R/3, दिस इज आल्सो R/3, दिस इज आल्सो R/3। अब आपके पास ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर क्या हैं, सीरीज में हैं। ये दोनों रजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में हैं। कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, और इन दोनों के साथ ये क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपके पास इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। सो दिस इज द यूज ऑफ स्टार डेल्टा मेथड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और किसी भी सर्किट की आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग द स्टार डेल्टा मेथड। कहीं पे भी आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है, ट्राई टू कन्वर्ट दैट डेल्टा, उस डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस इन ए resistor when current is flowing through it. Suppose we are having a resistor capital R across which we are applying a potential difference V. तो आपके पास suppose ये आपके पास एक resistor है, this is a metallic
रजिस्टर, यहाँ पे हमने एक सेल अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ईएमएफ अप्लाई की हुई है, लेट इट बी ई, और लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके दो टर्मिनल ए और बी के क्रॉस ये सेल है जिसकी ईएमएफ कितनी है, ई है, लेकिन इस सेल ईएमएफ के साथ हमारे पास इसके टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, वो वी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। दिस इज द हियर दिस इज हैविंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या है, आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है। क्लियर? सपोज अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस कि जब आप ये अप्लाई करते हो, अप्लाई करने से क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे अंडर दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। तो हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन क्या होता है, किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दिस कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने होंगे, एन ए एल होंगे। आपके पास एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टोटल चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, एन ए एल इंटू ई हो जाएंगे। और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ दे आर एक्सेलरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। और है क्या आपके पास, व्हाट हैपेंस कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है, सपोज इसका पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VB। हियर VA क्या है आपके पास ग्रेटर देन VB है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस EVB होगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस EVA होगी। अगर इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ माइनस ई से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस EVA क्या हो जाएगी, लेस देन माइनस EVB हो जाएगी। क्लियर? नाउ इट मीन्स दैट कि जब इलेक्ट्रॉन B टू A मूव कर रहा है उस समय क्या है, देयर इज ए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस EVB माइनस EVA, और दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, EVA माइनस VB। और VA माइनस VB क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, EV आ जाएगी। इस तरह सपोज कर लो कि इस आपके पास कंडक्टर के पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हैं, कैपिटल N है, तो उनके पास उनकी जो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, NEV हो जाएगी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, NEV। तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दिस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन जस्ट टू हीटिंग दैट कंडक्टर। तो ये जो Ne को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू T लिख सकते हैं। Ne कैन बी रिटन एज, चार्ज कैन बी रिटन एज I इंटू T। तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू VIT। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और V को हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, दैट विल बी I स्क्वायर R इंटू T। और हम I को क्या लिख सकते हैं, V बाय R लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज V स्क्वायर बाय R इंटू T। सो दिस इज द हीट energy or electrical energy produced in a conductor when potential difference V is applied. I is the current flowing through it, R is the resistance of that conductor. Clear? और heat energy produced per unit time, that is the electric power. जो electric power आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, VI, और that is I square R, और that is equal to V square by R। वो क्या होगी, that will be the electric power. Clear? तो इस तरह से आप देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास एक तरफ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमारे पास दो फार्मूले आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर बाय R आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर हम देखें
तो आपके पास क्या है, इनवर्सली एक फार्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, एक फार्मूले में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन बिटवीन दीज टू फार्मूलाज। द रीजन बीइंग, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, और जब करंट कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी कि मोस्टली जब हमारे पास किसी भी सर्किट में हम सप्लाई कांस्टेंट लेके चलते हैं तो इसलिए आपके पास हमेशा क्या लेके चलते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ही लेकर चलते हैं। अब आपके पास जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेज सारे के सारे पैरेलल में लगे होते हैं। इन सभी हाउस होल्ड अप्लायंसेज में आपके पास क्या होता है, रजिस्टर्ड हाउस होल्ड अप्लायंसेज में सब अप्लायंस के क्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होने से पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, और वी कैन से जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है। इसलिए आपके पास जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं उनकी जितनी ज्यादा पावर होगी, जिस अप्लायंस की जितनी ज्यादा पावर होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। जैसे आपके पास सपोज कर लीजिए दो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, एक बल्ब 100 वाट का है और एक बल्ब 60 वाट का है, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 60 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 100 वाट बल्ब। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने दो बातें जरूर याद रखनी है कि हमारे इंडिया में जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो सारे के सारे पैरेलल में लगे होते हैं, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, और जो इसलिए जो भी अप्लायंस जिस अप्लायंस की पावर ज्यादा होगी उस अप्लायंस की रेजिस्टेंस कम होगी। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब भी हमने पावर का रिजल्ट यूज करना है वी ऑलवेज कंसिडर V स्क्वायर बाय R, हम पोटेंशियल हम सप्लाई ही कांस्टेंट लेकर चलते हैं। लेकिन आपके पास आपके घरों में एक फ्यूज वायर लगी होती है। फ्यूज वायर क्या होती है, वो हमेशा जितना भी आपके पास हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, जितने भी आपके पास सारा सर्किट है घर का, उस घर के सर्किट के उस हाउस के सर्किट के बाहर वो सीरीज में वो रजिस्टर लगा होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फ्यूज वायर कहते हैं। और इस फ्यूज वायर का पर्पज क्या होता है, कभी भी किसी भी हाउस में जब जो उसका रिक्वायर्ड करंट है उससे ज्यादा कई दफा वहां पे करंट ज्यादा हो जाए तो आपके पास वो इमीडिएटली वो फ्यूज वायर क्या होती है, वो बंद कर जाती है, वहां से ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण आपके पास घर का सारा सर्किट जो सप्लाई जो मेन जा रही है वो सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो होता क्या है कि जब कभी भी आपके पास सर्किट में एक्सेस करंट आ जाए, एक्सेस करंट आने से आपके अप्लायंसेस को वो डैमेज कर सकती है। तो इसलिए उससे पहले कि जब एक्सेस ऑफ करंट आ गया वो करंट आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस को डैमेज करे उससे पहले सारी मेन सप्लाई क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो उसी वायर को हम क्या कहते हैं, फ्यूज वायर कहते हैं। और वो फ्यूज वायर क्या है, ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मीन्स उसका जो टेम्परेचर के साथ इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और इस फ्यूज वायर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फ्यूज वायर में जो करंट फ्लो करता है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दैट फ्यूज वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ दैट फ्यूज वायर। और उस फ्यूज वायर की जो लेंथ है वो इमटेरियल होती है, लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर डजंट मैटर। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द फ्यूज वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ दैट फ्यूज वायर। क्लियर? नाउ I will discuss how much power can be withdrawn from a cell across a load resistance. Suppose we are having this is a cell whose EMF is E and internal resistance is small r. तो आपके पास ये एक लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस
हम इस सेल से कितनी पावर विड्रॉ कर सकते हैं। तो पावर विड्रॉन फ्रॉम द सपोज फ्रॉम द सेल वी आर विड्रॉइंग हाउ मच करंट, आई करंट हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो पावर विड्रॉन फ्रॉम दिस सेल अक्रॉस डिस्टेंस r विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इनटू कैपिटल R होगी। और हेयर I क्या होगा, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर। सो पावर विड्रॉन फ्रॉम दिस सेल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, E स्क्वायर कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R होगी। दिस इज द पावर विड्रॉन फ्रॉम द सेल। एंड रिमेंबर बच्चों कि आपके पास जब कभी भी इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगी, उस समय इस सेल से हम मैक्सिमम पावर विड्रॉ करेंगे। व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R के अक्रॉस होगा, उस समय आपके पास पावर विड्रॉन फ्रॉम दिस सेल विल बी मैक्सिमम। हाउ, when small r is equal to capital R, this power withdrawn will be maximum. अब if it is to be maximum, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल फैक्टर क्या है, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर शुड बी इक्वल टू 0। इसको हम कैपिटल R के साथ डिफरेंशिएट करके 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। मींस वैसे भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होती है, उस समय करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल मैक्सिमम हो जाएगा, तो पावर विड्रॉन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम पावर किसके इक्वल आ जाएगी, दिस मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4r और ई स्क्वायर बाय 4 इंटू स्मॉल r। दिस इज द मैक्सिमम पावर withdrawn from the cell. Clear? So this is the finishing of electric current बच्चों with you. So बच्चों, as you know, my all these classes are dedicated to this nation, dedicated to the corona warriors of this nation, dedicated to the PM Care Fund. Would be बच्चों देखिए, आपने इस कोरोना के माहौल में जितने भी कोरोना वायरस के लिए आपको प्रिकॉशन बताए हुए हैं, सबको आपने अडॉप्ट करना है। मास्क, जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो मास्क आपने लगा के जाना है, और घर में वापस आते हो अच्छी तरह अपने हैंड को वॉश करना है। ये इन 2 चीज़ों की तरफ आपने पूरा ख्याल रखना है, और जिससे आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है। कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।